Assalamu alaikum. Welcome to another lecture of parallel and distributed computing. This is lecture 7, and this lecture will be divided basically in two parts, part A and B. This is part A of the two lectures. And the topics that we need to cover in this lecture are going to be POSIX threads, which you would have already covered in operating system very recently, but we will go into some details of threads again, because this is a part of the parallel computing, because it enables simultaneous execution or concurrent execution of multiple flow of executions. So uh, we will talk about what POSIX threads are, what are the different thread models, and then a little bit about the API of threads in Linux. Of course, in that we will be talking about the management of the threads and the mutual exclusion, and for that we will use the mutex. Apart from that, the thread API also incorporates locking overhead. These topics like locking overhead, the condition variables, and the infamous problem called the producer-consumer problem. But this will be discussed in the 7B lecture, which would be the next lecture after this one. So, what is a thread? A thread is an independent stream of instructions that can be executed, that can be scheduled to run by the operating system. So just like you have a process can be also called as a single threaded program, where you have just one flow of execution that you can execute sequentially, but it is possible to add another thread where you have another flow of execution and you can execute them simultaneously. So a thread is also a procedure that runs independently from its main program. So just like you call a simple function, okay, let me give you an example over here. So generally what you do is you have some code, and let's suppose you have a function written somewhere over here. Okay, so you have actually defined a function over here and you call it from over here. What actually happens is the control straight away transfers over here. Okay, uh, all of this code is skipped. You continue with this execution, and as soon as you have completed the execution of this function, the control is returned again to this point where you again sequentially start executing. Okay, this is what happens normally, but within a thread, within a multi-threaded environment, what actually happens is you have some code over here. Okay, you have some code. There's some problem. I'm experiencing some issues with registering of clicks. Okay, I think it's fine now. So you have some code over here, and then you define a function, and this function is executed like a thread. As soon as you call this thread, okay, this execution starts, and at the same time you're also able to continue this execution. So simultaneous execution would actually happen, and this is what a multi-threaded environment is for. You are able to do two things at the same time. In this case, you are not able to do two things at the same time. You are either executing the function or you are executing the code other than the function. Okay, it's just the transfer of control from one point to the other point, but in this case you are doing simultaneous execution. And whenever you are able to do that, this is what happens internally within the system. This is a single threaded process where you have one process which has a single flow of execution, meaning there is just one type of statements, and you are simply executing them, and all the registers and stack are for that one thread of, or you can say that one flow of execution, and the code, data, and files are all shared by just there is no sharing as such, because there is just a single thread over here. But when you have a multi-threaded program or a multi-threaded process, then you have multiple flow of executions, and you can execute them all simultaneously. Okay, uh, and remember that the registers and stack for each of these threads would be independent, but the code and the data and the file section, as you would have seen already in the address space of the process, the code, data, and files are shared between each of these threads. So some of the resources of a process would be shared, and some of the resources you cannot share, because of course you cannot share the stack, because you will need to store addresses individually according to
this thread, or you need to store some variables, some local variables, and of course there would be some registers values that would be specific to this thread, so you cannot share that with the other threads. Okay, so from a single threaded process you move to a multi-threaded process, because multi-threading, the concept of multi-threading would actually save you more resources. It will allow you context switching between these threads in a faster way. So it is generally more faster, and it is generally more resource saving kind of technique. Okay, so that's why we use multi-threading. So pthreads have been specified for Unix by IEEE POSIX 1003.1c standard. So basically the POSIX is as family of standards that have been defined by IEEE, and many different operating systems or vendors, they basically follow the same standard of APIs, so that if you write one code, it can be executed on in multiple environments or multiple operating systems. So there's just that one standard defined by the IEEE Computer Society, and every operating system, mostly the Unix type operating systems, they simply follow they do compliance with the POSIX standards. There exist other thread libraries as well. For example, Java में भी आप threads जो है वो execute करवा सकते हैं, या फिर दूसरे जो है वो programming environments में भी, उसमें भी आप threads जो है वो create कर सकते हैं. But multi-threading is a very powerful concept, and it allows you granular or finer level control of creating threads or managing them. What is generally a multi-threading? It's the operating system facility that enables an application to create threads of execution within a process. एक ही process के अंदर अगर आप multiple threads बनाना चाह रहे हैं, so multi-threading का ये concept जो है ये काफ़ी ज़्यादा powerful है, और काफ़ी ज़्यादा strong consider किया जा रहा है from around 2 decades or something. Many different users can run programs that appears to be running at the same time. Generally आपके पास ऐसे होता है कि multiple users होते हैं, और हर एक user के related उनका कोई ना कोई एक process होता है जिसको आप execute कर रहे होते हैं simultaneously multiple cores के ऊपर. लेकिन थ्रेड में होता ये है कि एक ही प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही आप मल्टीपल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशंस को बेसिकली इनेबल करते हैं. सो जब भी आप एक प्रोसेस क्रिएट करेंगे, एक नया प्रोसेस स्पॉनिंग या क्रिएशन जो है या फोक करना, इट्स एन एक्सपेंसिव ऑपरेशन. जब आप थ्रेड्स क्रिएट करते हैं, सो इट सेव्स यू मोर टाइम, जनरली मोर टाइम एज वेल. परफॉर्मेंस भी आपकी बेहतर रहती है, और उसके अलावा आपके रिसोर्सेज जो है वो भी सेव हो जाते हैं. However, with a single processing unit, they are not running at exact same time. And of course, this is a fact कि एक प्रोसेसर एक वक्त में सिर्फ एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है, या सिर्फ एक ही थ्रेड को एक वक्त में एग्जीक्यूट कर सकता है. आपको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बीच में करनी होगी अगर आप एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस की एग्जीक्यूशन जो है वो आप करेंगे. जब आपके पास प्रोसेसर एक है, तो वो एक वक्त में सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता होगा. Operating system switches available resources from one running program to another. और operating system का काम ही ये context switching, as you would have come across this term, context switch करना होता है एक process से दूसरे process में, या of course threads के बीच में भी आप context switching जो है वो कर सकते हैं. Multiple threads exist within each process and share resources like memory. So ये मैंने जैसे आपको बता दिया, threads के में कुछ resources जो है वो shared होते हैं, और कुछ resources जो है वो independent होते हैं. So portable operating system interface, which basically is the long term for POSIX, उसकी एक बड़ी मशहूर API है जो कि एक स्टैंडर्ड है, ठीक है. और जैसे मैंने बताया, काफ़ी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं वो इसी एक स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही होती हैं. पी थ्रेड्स में काफ़ी जो है वो आपको एडवांटेजेस हैं, जिसमें एक बड़ी बात जो है वो ओवरलैपिंग आईओ एंड सीपीयू वर्क. मतलब ये कि एक थ्रेड अगर कोई एक आईओ करना चाह रहा है, तो उसी वक्त किसी दूसरे थ्रेड को आप स्केड्यूल कर दें तो वो अपना सीपीयू को यूटिलाइज कर सकता होगा. सो जस्ट लाइक प्रोसेसेस के बीच में आप इंटरलीविंग कर सकते हैं, उसी तरह थ्रेड्स के बीच में आप इंटरलीविंग कर सकते हैं. और ये ओवरलैपिंग जो है वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो जाती है, कि ये नहीं कि सिर्फ एक ही वक्त में या आईओ हो रहा होगा या फिर सीपीयू को यूटिलाइज किया जा रहा होगा. एक वक्त में दोनों काम जो है वो हो सकते हैं. आप इसमें स्केड्यूलिंग कर सकते हैं और लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं. एक थ्रेड को एक काम दे देना, दूसरे थ्रेड को दूसरा काम देना. So you can actually program it just like मैंने आपको बताया. You have finer control, so it allows you to more flexibility to do anything. But of course, this introduces some complexity for the programming end, and that's why you will see कि आगे जाके अगर threads के बीच में कुछ resources share होते हैं, तो उनके बीच में synchronization को establish करना is a rather difficult thing. So even if I'm saying that there's programming complexity, but
still the API is itself not that difficult, and with little effort you can actually get a good interface with the help of which you can you are enabled to do a lot of things quite conveniently. And of course, for that matter, it has widespread usage because it has many advantages to it. And in parallel programming specifically, which is what we want at the end of the day from p threads, उसके थ्रू आप पैरेलल प्रोग्रामिंग जो है वो बड़े आराम से कर सकते हैं, और उस केस में ये काफ़ी यूजफुल है. ओके, सो थ्रेड की इम्प्लीमेंटेशन कुछ मॉडल्स हैं. एक मैनी टू वन है, दूसरा वन टू वन है, और मैनी टू फ्यू है. सो मैनी टू वन से बेसिकली मतलब क्या है, या ये इम्प्लीमेंटेशन मॉडल्स होते क्या हैं? बेसिकली आपके पास ये आपको ये पता होगा कि आपके पास यूजर लेवल प्रोसेसेस होते हैं और आपके पास कर्नल लेवल प्रोसेसेस होते हैं. उसी तरह से फिर थ्रेड्स में भी आपके पास यूजर लेवल थ्रेड्स होती हैं जो कि ऑफ कोर्स यूजर प्रोसेस का हिस्सा होता है, और उस तरह से कर्नल प्रोसेस के अंदर फिर कर्नल थ्रेड्स होते हैं. ठीक है जी. कर्नल थ्रेड्स आपको बेसिकली इनेबल करते हैं कि वो आपके यूजर लेवल के प्रोसेसेस को उठा के आप उसको कर्नल लेवल प्रोसेसेस के ऊपर या थ्रेड्स के ऊपर मैप कर दें, और वो कर्नल जो है वो आगे जाके प्रोसेसर को असाइन किया जाता है फॉर एग्जीक्यूशन. ठीक है. सो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज you can have different types of these mappings. Many to one basically means you have many user level processes that can be mapped onto one kernel level process. ठीक है. वन टू वन का मतलब ये है कि for each user level process there is one kernel level process, and for many to few it means basically you have many user level processes which can be mapped onto few kernel level processes. ठीक है. So for each of these implementation models there are some goods and bads. Let's try to look at it visually. So if you take a look, this is what we mean by many to one model. Okay, so in the many to one model, these blue lines actually represents user level threads, और ये user level threads जो हैं ये सिर्फ एक कर्नल लेवल थ्रेड के ऊपर जो है वो मैप हो जाती है. मतलब ये कि अगर ये चार एक ही प्रोसेस से बिलोंग कर रही हैं, ठीक है, सो ये सब जो है वो एक ही कर्नल थ्रेड के ऊपर मैप होंगी. अब सपोज यहाँ पे कोई एक फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है और यहाँ पे आपने कोई एक ऐसे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जिसकी वजह से ये जो थ्रेड है ये ब्लॉक हो गया, ये सपोज स्लीपिंग मोड में चला गया. अब मैनी टू वन मॉडल का डिसएडवांटेज यही है कि अगर ये एक ब्लॉक हो गया तो उसने इस कर्नल लेवल थ्रेड को एक्चुअली ब्लॉक कर दिया, और ये बाकी थ्रेड्स जो हैं ये अब आगे एग्जीक्यूट नहीं हो सकते बिकॉज दिस वन हैज ब्लॉक. ये खुद तो ब्लॉक हो गया लेकिन इसकी वजह से ये वाले भी ब्लॉक हो गए. ठीक है जी. उस चीज को खत्म करने के लिए कि अगर एक ब्लॉक हो जाता है तो बाकी सारे भी ब्लॉक हो जाएंगे. सो आपके पास वन टू वन मॉडल है. वन टू वन मॉडल में फॉर एवरी यूजर लेवल थ्रेड यू हैव वन कर्नल लेवल थ्रेड. ठीक है. तो अगर सपोज ये एक ब्लॉक भी हो जाता है तो उसमें ये बाकी थ्रेड्स जो चाहे उसी प्रोसेस से बिलोंग कर रहे हैं ये फिर भी अपनी एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू करेंगे. इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि कर्नल लेवल थ्रेड्स जो हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, ये काफ़ी रिसोर्स इंटेंसिव होते हैं, और ये आपके पास लिमिटेड नंबर में होते हैं अनलेस एंड अनटिल यू हैव ह्यूज रिसोर्सेज. सो ऑफ कोर्स आपके पास इस तरह के रिसोर्सेज हर एक सिस्टम में नहीं होते. तो अगर आप हर एक यूजर के लिए हर एक कर्नल लेवल थ्रेड बनाएंगे तो ये इवन इफ इट फील्स कन्वीनियंट इट इज एक्सपेंसिव ऑपरेशन बिकॉज आपके पास हर एक प्रोसेस के लिए इतने सारे कर्नल लेवल थ्रेड्स अवेलेबल नहीं होंगे. तो फिर एक मैनी टू वन या फिर मैनी टू फ्यू के नाम से जो है ये जाना जाता है. ठीक है. एक और मॉडल है जिसमें काफ़ी सारे यूजर लेवल थ्रेड्स जो हैं वो कुछ कर्नल लेवल थ्रेड्स के ऊपर जो है वो मैप हो जाते हैं. ठीक है. लाइक अगर फॉर एग्जांपल ये चार हैं तो यहाँ पे आपको ये तीन नजर आ रहे हैं, ये दो भी हो सकते हैं, और अगर आपके पास रिसोर्सेज ज्यादा हो तो इट कैन बिकम द मैनी टू फ्यू और द मैनी टू मैनी मॉडल कैन बिकम मोर लाइक अ वन टू वन मॉडल. ठीक है. अगर आपके पास कर्नल लेवल थ्रेड्स अवेलेबल हैं तो यूजर अगर लेवल थ्रेड्स चार हैं तो चार यूजर लेवल थ्रेड्स को चार कर्नल लेवल थ्रेड्स दें. सो दिस इज मोर लाइक द इन बिटवीन द वन टू वन एंड द मैनी टू वन. ठीक है. सो मैनी टू फ्यू इज अ बेटर अप्रोच जिसमें आपके पास अगर ब्लॉकिंग एज सच अगर आ भी जाती है यू कैन स्टिल डू सम एग्जीक्यूशन एट द सेम टाइम. और अगर आपके पास ब्लॉकिंग नहीं होती तो उसके बावजूद अगर आपके पास कर्नल लेवल थ्रेड ज़्यादा मौजूद हैं सो आपके पास हर एक यूजर लेवल थ्रेड के लिए हर एक कर्नल लेवल थ्रेड जो है वो आप असाइन कर सकते हैं. अच्छा, जब जिस तरह से एक नॉर्मल एप्लीकेशन आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं और आपके पास ये एक सिचुएशन है कि जी आप वाइल वन वाला वो एक फेमस जो मैं एग्जांपल हमेशा दे रहा होता हूँ कि जी अगर आप इस तरह की कोई एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दें वाइल ट्रू या वाइल वन और एक सेमीकोलन एम्प्टी स्टेटमेंट आप दे दें सो इट विल कंटिन्यू फॉरएवर.
सो एक नॉर्मल प्रोसेस के केस में आप क्या कर सकते हैं, आप कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, फोर्स्ड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर सकते हैं। लेकिन थ्रेड लाइब्रेरीज में ये एक बात है कि ये जो आपको यूजर लेवल थ्रेड नजर आ रहे हैं, ये डायरेक्टली इस तरह से कर्नल के ऊपर मैप नहीं होते। इसके बीच में जो एक बॉडी होती है या एक एंटिटी होती है, वो है यूजर लाइब्रेरीज, ठीक है। सो जिस तरह से पोसिक्स थ्रेड्स की हम बात कर रहे हैं, सो आपके पास कोई भी एक सी की लाइब्रेरी है, वो बेसिकली एक उसके अंदर ही एक स्टैंडर्ड पोसिक्स का डिफाइंड होता है कि वो बेसिकली क्या करती है कि वो इन थ्रेड्स में से कोई एक थ्रेड को सेलेक्ट करती है और वो कर्नल को दे रही होती है, ठीक है। देयर इज अ concept in the middle of these two which is basically called as LWP, lightweight processes. It's more like a, you can say, a virtual kind of processor, which of course is beyond the scope of this course, but I'm just trying to emphasize on it कि अगर एक नॉर्मल आपके पास सिचुएशन होता है कि आप while one एक प्रोसेस के अंदर एग्जीक्यूट करते हैं, तो उधर से तो आप कॉन्टेक्स्ट स्विच कर लेते हैं, ठीक है। सिंपली टाइमर जो है वो हार्डवेयर यूनिट यूज किया जा रहा होता है। लेकिन इस केस में आप वो वाला काम नहीं कर सकते कि जी अगर ये ब्लॉक है तो आप तो ऑफ कोर्स कॉन्टेक्स्ट स्विच कर सकते हैं। इस केस में आप कॉन्टेक्स्ट स्विच इस तरह से नहीं कर सकते, बिकॉज कॉन्टेक्स्ट स्विच को कौन हैंडल कर रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हैंडल करता। इस केस में कॉन्टेक्स्ट स्विच को मैनेज कौन कर रहा होता है, वही यूजर लेवल लाइब्रेरीज जो कि इस यूजर थ्रेड को बेसिकली मैनेज कर रही है, ठीक है। आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम जो कि यूजर खुद डेवलप करता है। सो अगर आपका ये फॉर एग्जांपल एक कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है, तो ये चारों की चारों थ्रेड्स किसी अ, दूसरे इनको स्टॉप करके, इनके एग्जीक्यूशन को स्टॉप करके किसी दूसरे प्रोसेस की किसी दूसरी थ्रेड्स को जो है वो एग्जीक्यूट किया जा रहा होगा, अगर आप मैनी टू वन मॉडल यूज करेंगे। और अगर इस प्रोसेस की दोबारा बारी आती है तो दोबारा यहाँ पे आप स्टक होंगे, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कोड के थ्रू हो सकता है, और कोड तब ही एग्जीक्यूट हो सकता है जब ऑफ कोर्स ये वाला इस स्टेटमेंट को आप छोड़ के किसी दूसरे स्टेटमेंट के ऊपर चले जाएं, ठीक है। और वो आपके पास पॉसिबल नहीं है। यूजर लेवल जो लाइब्रेरीज होती हैं उसका कुछ कोड एग्जीक्यूट होगा, और जिसकी जिसके नतीजे में आप कॉन्टेक्स्ट स्विच कर सकते होंगे। मतलब ये कि पहले उस यूजर लेवल लाइब्रेरी ने इस थ्रेड को कर्नल लेवल थ्रेड के ऊपर असाइन किया था, अगर यूजर लेवल लाइब्रेरी को दोबारा मौका मिलेगा तो वो उस थ्रेड को छोड़ के किसी दूसरे थ्रेड को मौका देगा। लेकिन चूंकि इसकी एग्जीक्यूशन इस वक्त कर्नल के ऊपर हो रही है, तो यूजर लेवल लाइब्रेरीज को मौका ही नहीं मिल रहा। दैट्स व्हाई यू गेट ब्लॉक कंप्लीटली इन द वन टू वन मॉडल एंड इन द मैनी टू वन मॉडल। ओके, this was just some additional information, but this was for the purpose of students who could get confused. ओके, उसके बाद फिर पी थ्रेड्स की जो एपीआई है, उसमें आपके पास थ्रेड की मैनेजमेंट होती है, जिसके थ्रू आप थ्रेड क्रिएट, डिटेच, जॉइन या थ्रेड के एट्रीब्यूट्स जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। यू वुड हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस हाउ टू क्रिएट अ थ्रेड और join thread, maybe not detach in the operating system, but if you have, well and good. If not, we'll just briefly go through it. उसके अलावा फिर आपने म्यूचुअल एक्सक्लूजन के कॉन्सेप्ट को देखा होगा। मोस्ट प्रोबेबली यू वुड हैव अंडरस्टूड सेमाफोर्स फॉर दैट मैटर, लेकिन यहाँ पे हम उससे एक रादर इजियर कॉन्सेप्ट जो है वो म्यूटेक्सिस का, वो हम देखेंगे। म्यूटेक्स इज अनदर वे ऑफ establishing mutual exclusion in order to incorporate synchronization somehow between multiple processes or between multiple threads. But mutex is well known. The concept of mutex is well known for the threading, multi-threading environment. And of course, you can create, destroy, lock, unlock, and define attributes for the mutex. इसके अलावा कंडीशन वेरिएबल्स हैं जो कि इंशाल्लाह हमने अगले लेक्चर्स में देखनी है, सो विल गो थ्रू दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर व्हिच इज द 7B पार्ट। ओके, और पी थ्रेड्स की जितने भी फंक्शंस हैं व्हिच आर क्वाइट मैनी, मतलब काफ़ी सारी सिस्टम कॉल्स हैं इसकी, वो सारी जो है वो पी थ्रेड्स अंडरस्कोर एच के अंदर आपको सारी उनकी डेफिनेशन जो है वो मिलेगी। और पी थ्रेड्स दूसरे लैंग्वेजेस के लिए भी या दूसरे प्लेटफॉर्म्स के लिए भी आपके पास अवेलेबल है। There are over 60 calls of pthread, as I told you just कि जी वो pthread underscore h के हेडर के अंदर जो है वो मौजूद है। सो थ्रेड के मैनेजमेंट के लिए आपके पास कुछ बेसिक जो है वो वेरी वेल नोन जो है वो सिस्टम कॉल्स हैं या फंक्शंस हैं। These are pthreads underscore create, with the help of which you can basically create a new thread. Then you have pthread underscore exit, with the help of which you can terminate a thread. You can safely exit that thread, and of course you can return the status just like you could return the status using the exit system call within a process. Then you have the attribute initialization function, with the help of which you can set the attributes of a newly created thread. और उसके अलावा of course at the end जो है वो आप उस attributes को destroy भी कर सकते हैं if you want to, ठीक है।
एज यू कैन सी पी थ्रेड एट्रीब्यूट अंडरस्कोर इनिट वाला ये जो फंक्शन है उसको आप एट्रीब्यूट पास कर रहे हैं, लेकिन यही एट्रीब्यूट जैसे ही आप पॉपुलेट कर दें यूजिंग दिस इनिशियलाइजेशन फंक्शन, फिर आप इसको पास कर सकते हैं इस थ्रेड को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। सो दिस सेम variable can be used over here in order to create this thread with some specific attribute, and of course once that thread is created you can simply destroy that object. But I don't think we'll have to create some threads with some new kind of attributes. Generally इसको आप null ही रखते हैं, ठीक है जी। So this is some detailed uh, way of looking at the pthread underscore create function, because you'll be using this quite often. So the thread handle is used to assign a new ID to a newly created thread, and it is of type pthread underscore t. इसके अलावा फिर आपके पास वो attributes हैं which is of type pthread underscore attribute underscore t, और उसके बाद फिर वो फंक्शन जो कि आप एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं एज अ थ्रेड, सो यू विल पास the address to that function over here in the pthread underscore create, और उसके बाद फिर उस फंक्शन को अगर आप कोई आर्गुमेंट पास करना चाह रहे हैं तो वो आर्गुमेंट आप एज a separate argument to this pthread underscore create function you'll pass it, okay. And you can create as many threads as possible. There's actually no obligation, there is no limitation on the number of threads that you can create. उसके अलावा pthread underscore join आप कर सकते हैं much like the wait system call, जिसमें आप एक parent process जो है वो child process का wait कर सकता था for its execution। pthread underscore join का exactly उसी तरह से ही मकसद है। अगर आप child से कोई एक status लेना चाह रहे हैं, ठीक है, कि child ने कौन सा कोई चाइल्ड, उसकी आईडी आप यहाँ पे पास कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स या आपको वो मिल सकता है कि जी इस चाइल्ड ने ये वाली वैल्यू जो है या ये वाला स्टेटस मुझे रिटर्न किया है, वो आप pthread underscore join के थ्रू बेसिकली आपको पता चल सकता है, ठीक है जी। as soon as you call this function, the parent thread would be blocked over here, and as soon as the child thread would terminate, it would pass its ID and of course any status that it has returned. And the child would return the status using pthread underscore exec के अंदर वो यहाँ पे status पास करेगा, जो कि आपको यहाँ पे value underscore ptr के अंदर जो है वो वैल्यू आपको मिलेगी, उसका एड्रेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और आपको हर एक थ्रेड के लिए एक सेपरेट pthread underscore join को कॉल करना पड़ेगा। इसके अलावा pthread underscore detach है। pthread underscore detach से मतलब ये है कि अब आप एज अ सेपरेट एंटिटी जो है वो आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो एनी थ्रेड दैट वांट्स to be executed detached from its parent, सो pthread underscore detach उस पर्पस के लिए जो है वो यूज किया जा सकता है। इस केस में जैसे ही वो थ्रेड खत्म होगा, उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, उसको कोई एक स्टेटस रिटर्न करने का नहीं किया कहा जाएगा, और ऐसा उसकी जो रिसोर्सेज होंगे जब तक वो एग्जीक्यूट हो रहा है वो अपने रिसोर्सेज को यूज करेगा, लेकिन जैसे ही वो उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो कंप्लीट हो जाए, उसके तमाम रिसोर्सेज जो है वो बगैर किसी स्टेटस रिटर्न किए वो रिलीज हो जाएंगे टू द पूल ऑफ रिसोर्सेज ऑन द सिस्टम। सो इफ यू हैव दैट वन थ्रेड जो कि pthread underscore create को कॉल करेगा, जिसकी वजह से कोई और वर्कर थ्रेड जो है वो क्रिएट हो सकते हैं, सो द मास्टर और द पेरेंट thread would actually create other threads, and as soon as that work is completed, those threads can call pthread underscore exec, and of course pthread underscore exec can return status to the pthread underscore join. Of course, if you don't, the master thread wouldn't call the pthread underscore join, then it's okay to just simply detach these threads and they can work independently from that of their master thread. As I told you कि जी आपके पास यहाँ पे हर एक थ्रेड का जो है वो अपना एक स्टेक या फिर रजिस्टर होगा। सो बेसिकली यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कोई एज सच जो है वो POSIX स्टैंडर्ड स्पेसिफाई नहीं करता कि स्टैक का साइज इतना होना चाहिए फॉर अ थ्रेड। सो इट इज़ पॉसिबल कि आपने एक नया थ्रेड क्रिएट किया है और आप उसमें ओवर एलोकेशन ऑफ मेमोरी करें, जिसकी वजह से सेगमेंटेशन फॉल्ट जो है वो हो सकता है। सो इट इज़ बेटर दैट यू allocate enough space beforehand if you anticipate the use for more memory, okay। यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल जो है वो बताया है कि अगर आप थ्रेड क्रिएट करेंगे, उसका एक सिंपल प्रोग्राम क्या हो सकता है कि हम चाह रहे हैं कि ये प्रिंट हेलो का जो ये जो फंक्शन है, इसको हम एज अ सेपरेट थ्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करवाएं, ठीक है जी।
सो वी वांट टू हैव एक्चुअली 5 नंबर ऑफ थ्रेड्स, और आप देख सकते हैं हमने हेडर में यहाँ पे pthread_h को यूज किया है, ठीक है जी। सो प्रिंट हेलो में हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ थ्रेड का जो आईडी है हम उसको वो प्रिंट कर रहे हैं, हेलो वर्ल्ड इट्स मी थ्रेड, और उसके बाद फिर हम थ्रेड की आईडी यहाँ पे प्रिंट करेंगे, और उसके बाद pthread_exec, वी आर नॉट we do not want to return any status, we just simply want to exec, so हम pthread_exec में null पास कर रहे हैं, ठीक है। so this is what we want to execute, but मेन के अंदर हमने बेसिकली वो थ्रेड्स क्रिएट करने हैं, ठीक है जी। सो हम यहाँ पे एक लूप क्रिएट करेंगे नंबर ऑफ थ्रेड्स तक, 0 से लेके नंबर ऑफ थ्रेड्स तक, और हमने pthread_create का फंक्शन यहाँ पे यूज किया है। यहाँ पे हम थ्रेड t पास करेंगे, मतलब ये कि हमने pthread_t के टाइप का जो है वो एक अरे जो है वो बेसिकली डिफाइन किया है, और हम यहाँ पे वो पास कर रहे हैं ताकि हमें हर एक इस पूरे अरे को हम पॉपुलेट कर सके विद ऑल दी थ्रेड नंबर्स। So each time you execute pthread_create, it will populate this each of these index of array, ठीक है जी। एट्रीब्यूट्स आप नल पास कर रहे हैं, और प्रिंट हेलो उस फंक्शन का नाम है जिसको आप एज ए सेपरेट थ्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम पास कर रहे हैं void t को, मतलब इसमें हम बेसिकली t को पास कर रहे हैं, लेकिन हमने हर एक आर्गुमेंट को बेसिकली void में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है जी। बिकॉज एवरी डेटा टाइप इज कन्वर्टेबल टू, और इट्स पॉसिबल टू कास्ट इट इनटू void, और फिर void से आप दोबारा उसमें कास्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। सो यहाँ पे दिस इज काइंड ऑफ ए डिफिकल्टी कि अगर आप सपोज मल्टीपल जो है वो एट्रीब्यूट्स पास करना चाह रहे हैं, तो उस केस में आपको एक डेटा स्ट्रक्चर को जो है वो क्रिएट करना होगा, ठीक है। एज ए सेपरेट डेटा स्ट्रक्चर उसको एक्चुअली आपने पास करना होगा, so that can become a bit cumbersome. लेकिन चूंकि इस केस में हम सिर्फ t को पास कर रहे हैं, विच इज बेसिकली दी थ्रेड आईडी, ठीक है। हम हर एक थ्रेड को उसकी आईडी पास कर रहे हैं, और हम उसको कह रहे हैं कि उसको सिंपली प्रिंट कर दो, ठीक है। और यहाँ पे अगेन आप देख रहे हैं हम उस थ्रेड आईडी को बेसिकली जो हमें यहाँ पे एज ए वर्ड मिला है, हम उसको लॉन्ग में जो है वो कास्ट कर रहे हैं ताकि हम उसको सिंपली प्रिंट कर सकें। सो इफ यू आर पासिंग इट थ्रू pthread_create, यू विल हैव टू पास इट एज void, और फिर जब आप उसको दोबारा अपने ओरिजिनल फॉर्म में प्रिंट करना चाह रहे हैं, यूजर के सामने उस डेटा के ऊपर कोई मैनिपुलेशन करना चाह रहे हैं, तो अगेन आपको फिर उसमें उसको अगेन void से फिर कास्ट करना पड़ेगा। And of course, if you are not able to create the thread, then you will have to do some error handling over here. और eventually चूंकि ये खुद से भी एक main is itself the master thread, तो वो खुद भी pthread_exec जो है वो use कर सकता है in order to terminate itself. pthreads के अंदर synchronization is a big problem. It can happen कि multiple threads same data के ऊपर काम करें, जैसे इस केस में आप देख रहे हैं cost n की वैल्यू जो है वो for one thread could be 500 and for the other thread could be 950. So अगर दोनों इस तरह की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे तो टोटल कॉस्ट के अंदर फिर जो है वो कोई एक ऐसी वैल्यू आ सकती है जो कि डिजायर्ड नहीं होगी, और आपके पास ऐसा आउटपुट आ सकता है जो कि गलत होगा, ठीक है। सो म्यूचुअल एक्सक्लूजन के ऊपर अब थोड़ी सी बात होगी। आई थिंक इट्स बेटर टू टॉक अबाउट म्यूचुअल एक्सक्लूजन नाउ। Mutual exclusion variables work like a lock protecting access to a shared resource. So जैसे मैंने बताया यहाँ पे आपके पास एक shared resource है, ठीक है। और इस shared resource के ऊपर जो है वो आप multiple threads उसके ऊपर कोई operation perform करना चाह रहे हैं। So a good thing is to lock the resource before manipulating the data. So जब एक थ्रेड आएगा वो रिसोर्स को लॉक करेगा, तो दूसरा थ्रेड अगर उसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा भी तो वो उसका एक्सेस नहीं कर सकता होगा, बिकॉज दिस वन नीड्स टू परफॉर्म इट्स ऑपरेशन, और उसके बाद फिर वो लॉक रिमूव कर देगा ताकि दूसरा थ्रेड उसको कर सके। तो इस तरह से आपने सिंक्रोनाइजेशन को बेसिकली इनेबल कर दिया, ठीक है। तो उसके लिए आपको म्यूटेक्स को यूज करना पड़ेगा। म्यूटेक्स को उसके सीक्वेंस क्या होगा कि पहले आप म्यूटेक्स क्रिएट एक करेंगे, उसके बाद फिर वो लॉक एक्वायर करने की कोशिश करेगा, और जैसे ही वो लॉक एक्वायर करेगा तो उसमें कोई डेटा के ऊपर कोई मैनिपुलेशन करेगा, कोई चेंजेस करेगा, फिर वो लॉक को रिमूव करेगा ताकि दूसरे थ्रेड जो है वो म्यूटेक्स के थ्रू जो है वो लॉक एक्वायर कर सके, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। So here are a number of functions that are used for that purpose. pthreads mutex lock is used in order to acquire the lock on a particular mutex. और फिर उसी तरह से अनलॉक का भी आपके पास एक फंक्शन है, और आप म्यूटेक्स को बेसिकली इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है, यूजिंग द इनिट फंक्शन।
तो यहाँ पे उसके ऊपर एक एग्जांपल है, वही टोटल कॉस्ट वाली एग्जांपल कि पी थ्रेड म्यूटेक्स अंडरस्कोर टी टाइप का आप एक वेरिएबल यहाँ पे बेसिकली बनाएंगे और फिर उसको इनिशियलाइज करेंगे। उसके कुछ एट्रीब्यूट्स यहाँ पे आप पास कर सकते हैं, बट अगेन वी आर नॉट कंसर्न विद द एट्रीब्यूट्स फॉर द इनिशियलाइजेशन ऑफ दिस म्यूटेक्स। तो हमने जैसे इसको इनिशियलाइज किया, अब इनिशियलाइजेशन के बाद फिर हम क्या कर सकते हैं, हम कॉस्ट में अगर कोई चेंजेस करते हैं, सो फॉर एग्जांपल एक थ्रेड है, उसने इस वेरिएबल में कोई चेंजेस करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो ये एडिशन कर रहा है, तो एडिशन के लिए पहले क्या करेगा, वो लॉक एक्वायर करेगा। तो पी थ्रेड्स म्यूटेक्स लॉक इनिशियलाइजेशन के बाद फिर वो लॉक एक्वायर करेगा इसी वेरिएबल के ऊपर, ठीक है। सो दिस वेरिएबल इज यूज्ड एज द म्यूटेक्स in order to perform some operation on this data, ठीक है जी। जैसे ही वो अपने उस सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा which is considered as the critical section because this section can be executed by multiple threads at the same time, which is basically operating something on the shared data। तो जैसे ही उसने अपनी एग्जीक्यूशन यहाँ पे कंप्लीट कर ली है, तो उसके बाद फिर वो अनलॉक कर लेगा और अब दूसरा थ्रेड जो है वो उसके ऊपर अपनी ऑपरेशन को जो है वो परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। That's it for the first lecture of regarding p threads। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर हम और डिटेल के ऊपर इसके ऊपर बात करेंगे।